Hello students, welcome back once again in my English literature class. Today we are going to start chapter number 6 Lanchan by Somerset Maugham. And Somerset Maugham and explained very comedically and he has portrayed about a lady and about the writer, and you can say that writer himself is narrating about his own life, and whatever happened in is the incident is here shown in through these lines. So first of all you can see here that I have shown a picture about a party, and whenever many persons gathered they just do start some celebrations and do some parties. So in this chapter, first of all I would like to give you the summary because I have already given you a separate PDF notes about the author. So today is the turn of the summary of this chapter. So what is the summary? Let us see here. First, the Lanchan is a slice of life. The Lanchan means, what is the meaning of Lanchan? You all know very well that what is the meaning of Lanchan. Whenever we are having the feed after the breakfast, that is known as the lunch. Okay, so there is a Lanchan which is basically fixed with a lady of the writer. So the Lanchan is a slice of life story about Maugham. Lanchan did propose to him by a woman whom he hopes is a supporter of his art. Now students, in this story, what is the point of view? The writer, the book writers is the point of the view. The story is told through first person. The story is told through the first person narration, and in this chapter only the narrator is used the narrations of the first person. You can see here, I caught sight of her at the play. The first line is the part of the narration, and the narration is the first persons. So next thing, this story is basically depicted into three parts. Part 1, which is shown the present time, and part 2 is basically predicted about after the 20 years, and then once again third part is starts. So before narrating the part 1, part 2, part 3, I am just coming on the summary of the Lanchan. What is the summary? The Lanchan, writer of the Lanchan is William Somerset Maugham, and in this short story relates about a lady who is an admirer of his story. She wins the author's favor and expresses her wish to meet him at a high-class restaurant. William Somerset Maugham exposes the false motives of modest eating habits of the middle classes with a touch of humor. 20 years ago means second part. Now second part is starting. 20 years ago the author was living in Paris. You all know that Paris is the capital of France. Okay, 20 years ago this incident is happening before 20 years ago, and the author was living in Paris when he had met a lady who is an admirer of his stories. She had met him at a play and relates to him the incident during the interval which had occurred at that time. She had read a book written by him. Means in this story, writer himself portrayed as a writer, and his writings are read by the lady, and lady become the admirer of his writings. Whatever he writes in this story, after reading, lady become the admirer and had written a letter to him about her views. और फिर उसकी स्टोरी को पढ़ने के बाद वो लेडी उसको लिखती है उसके व्यूज के बारे में, एंड द लेटर वॉज पोस्टेड. और फिर उसके बाद एक लेटर वो लेडी उसको
राइटर को विलियम समरसेट मॉम को पोस्ट करती है स्टेटिंग अबाउट हर विजिट टू पेरिस एंड हर डिज़ायर टू हैव अ लिटिल लंच ऑन एट द फयर्ट्स। फयर्ट्स इज़ द नेम ऑफ द होटल, ठीक है। इसमें एक फयर्ट्स ऐसा होटल है जो कि बहुत ही डिज़ायरेबल होटल है, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होटल है, और वो लेडी डिज़ायर करती है उससे मिलने के लिए फयर्ट्स होटल में। मतलब बहुत सारे लेटर्स लिखने के बाद वो लेडी जो है अपने आप को मिलने के लिए तैयार करती है राइटर से, और वो पेरिस में, ये जो फयर्ट्स होटल है वो पेरिस में ही है, ठीक है। लंच ऑन एंड सी डिज़ायर टू हैव आल्सो अ लंच ऑन, और वो डिज़ायर करती है कि पेरिस के फयर्ट्स होटल में वो लंच करेंगे दोनों। अ रेस्टोरेंट वेयर फ्रेंच सीनेटर्स ईट, और ये रेस्टोरेंट्स ऐसा है जहाँ की फ्रेंच सीनेटर्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनके खाने के लिए जो कोई अगर स्पेशल अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं तो वो बहुत ही महंगे होंगे। इन द सेम वे द फ्रेंच सीनेटर्स आल्सो कम हियर टू हैव लंच, और वो वहीं पर डिज़ायर करती है कि फयर्ट्स होटल में वो दोनों लोग मिलेंगे और लंच करेंगे। एंड विलियम समरसेट मॉम हु इज़ द राइटर वॉज नॉट अ रिच मैन, वो बेचारा बहुत ही गरीब है, वो बहुत ही धनी आदमी नहीं है। एंड हैड नेवर इवन थॉट ऑफ विजिटिंग दैट रेस्टोरेंट, और वो पूरी ज़िंदगी में अपने सोचा भी नहीं था उस फयर्ट होटल में रेस्टोरेंट में विजिट करने का। नॉर डिड ही पजेस द आर्ट ऑफ रिफ्यूजिंग हर रिक्वेस्ट, और उसको ये भी पता नहीं है कि उस लेडी ने जो उससे लंच करने के लिए फयर्ट्स होटल में कहा है उसको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई वो लगा देना चाहता है उस लेडी को उस अच्छे से होटल में मिलने के लिए। नाउ व्हाट हैपन, estimating the cost of a luncheon which should not cost more than 15 francs is the जैसे हमारे इंडिया का करेंसी रुपी है, इन द सेम वे फ्रैंक्स जो है वो फ्रांस की करेंसी है। तो वो पूरा एस्टिमेट करता है कि एक लंच पर कितना फ्रैंक्स यूज हो सकता है, कितने फ्रैंक्स ख़त्म हो सकते हैं। तो वो ऐसा अंदाज़ लगाता है कि वो 15 फ्रैंक से ज़्यादा खर्च नहीं होंगे फयर्ट्स होटल में। ही डिसाइडेड टू कट डाउन कॉफ़ी फ्रॉम हिज मेनू, तो फिर वो अपने लंच से सोचता है कि चलो हम लोग कॉफ़ी नहीं पियेंगे, मतलब अपने मेन्यू से जो खाने का जो आइटम होता है फयर्ट्स होटल में उसमें से उसको कॉफ़ी को कट कर देता है, सो दैट ही कुड हैव इनफ फॉर हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, ताकि वो अगले 2 वीक्स में कुछ ज़्यादा पैसे बचा ले, ठीक है। हिज मीटिंग वॉज फिक्सड ऑन थर्सडे, और उसकी मीटिंग जो होती है फिक्स होती है उस लेडी के साथ थर्सडे के दिन एट 12:30, मतलब 12:30 बजे थर्सडे के दिन फयर्ट्स होटल में, जहाँ के फ्रेंच सेनेटर्स आते हैं और खाते हैं, जो कि बहुत ही महंगा होटल है, वहाँ पर थर्सडे के दिन 12:30 बजे उसकी मीटिंग उस लेडी के साथ फिक्स होती है। थ्रू करस्पॉन्डेंस, मतलब पत्राचार के माध्यम से वो दोनों अपनी मीटिंग को फिक्स करते हैं। द लेडी वॉज इन हर 40s, टॉकेटिव एंड नॉट अट्रैक्टिव, और लेडी जिसकी तरफ पूरी तरह से वो अट्रैक्ट है राइटर, वो एटलीस्ट 40 साल की हो चुकी है, बहुत ही वो बातूनी है और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ही अच्छी नहीं लगती है। सी हैड ऑर्डर्ड फॉर सैल्मन कैवियर, while the salmon was being prepared, William had ordered for the cheapest dish mutton chops। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लंचॉन के बारे में बातें की जा रही है, तो बहुत सारे इसमें डिशेज हैं, खाने के आइटम्स हैं, जैसे सैल्मन एक फ्रांस में बहुत ही महंगी फिश होती है, जो मछली होती है सैल्मन फ्रांस में बहुत ही महंगी मछली होती है। और फिर कैवियर, वाइल द सैल्मन वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, जब ये सैल्मन मतलब वो मछली पकाई जा रही होती है या बनाई जा रही होती है, तो विलियम क्या करता है कि ऑर्डर करता है, जो राइटर है वो ऑर्डर करता है बहुत ही सस्ता भोजन जिसका नाम है मटन चॉप्स। मतलब वो मटन को, जो छोटे छोटे चॉप्स होते हैं, मटन के टुकड़े होते हैं, बकरे के टुकड़े होते हैं, उसको वो ऑर्डर करता है। आफ्टर द मील, मतलब भोजन करने के बाद उन सबको एस्पैरेगस चाहिए होता है, द हॉरिबली एक्सपेंसिव डिश, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से बहुत ही महंगा डिश है। विलियम्स हार्ट सैंक, और विलियम का जो राइटर है उसका जो दिल है वो डूब जाता है। हिज माउथ वाटर्ड, उसका जो मुंह होता है वो पूरा गीला होता है। एंड येट ही हैड टू क्वेल हिज इमोशंस एडिंग टू वर्सन द सिचुएशंस। सी ऑर्डर फॉर आइसक्रीम, मतलब ये सब खाने के बाद भी वो फिर आइसक्रीम का ऑर्डर करती है। एंड देन कॉफ़ी, फिर उसके बाद कॉफ़ी का ऑर्डर करती है। All the same announcing that is she never ate anything for luncheon, just a bite,
Thoughts kept filling through William's mind about how he was going to pay the exorbitant bill, or how could he feign an act of his pocket having been picked. और वो इतना सारा लंच के रूप में ऑर्डर करने के बाद उस लेडी के द्वारा वो सोचता है कि उसके जो पॉकेट हैं पूरी तरह से किसी के द्वारा मार लिए गए हैं. मतलब ऐसा सोचता है कि मैं बहाना बनाऊँ, मैं ये सारे पैसे कैसे दूंगा. तो वो सोचता है कि मैं बहाना बनाऊँ कि शायद मेरी पॉकेट किसी ने मार ली है. ठीक है. टू हिज अटर डिसमे द हेड वेटर वॉक्ड अप टू द टेबल विथ अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेज. मतलब फिर उसके बाद जो हेड वेटर होता है उनके टेबल के बगल में आता है. जैसे कि सब लोग खाना खाने के बाद फिर वो वेटर आता है. फिर वो वेटर जो है पीचेज लिया होता है. वो कहता है कि अगर आपको और चाहिए तो पीचेज ले लो. She picked up one, protesting that her meal was just a snack and that she could certainly enjoy the peach. मतलब फिर भी वो इतना खाने के बावजूद भी थोड़ा सा ये बहाना बनाती कि नहीं और कुछ नहीं चाहिए. ये कहने के बावजूद भी वो पीच को उठा करके खा लेती है. द बिल वॉज फाइनली पेड. और अंत में बिल जो है पेड कर दिया जाता है. एंड विलियम फाउंड हिमसेल्फ विथ जस्ट फ्यू फ्रैंक्स फॉर द टिप्स. और विलियम के पॉकेट में बहुत ही कुछ फ्रैंक्स बचे हुए थे जो कि वो वेटर को टिप्स के रूप में देता है. एंड नॉट अ पेनी लेफ्ट इन हिज पॉकेट फॉर द होल मंथ. और ये सब बिल पेड करने के बाद उसके पास इवन एक पेनी भी नहीं बचता है. सपोज दैट मेरा अगर करेंसी इंडिया का रुपीस है तो रुपीस की जो सबसे छोटी करेंसी होती है वो पैसे होते हैं. उसी तरह से फ्रैंक इज़ द मेजर करेंसी ऑफ द फ्रांस एंड पेनी इज़ द लोएस्ट करेंसी ऑफ द फ्रांस. मतलब उसके पास पूरे महीने के लिए एक पेनी भी नहीं बचता है. द बिल वॉज फाइनली पेड. ठीक है. इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर. And today we are just moving on part 1. In this part 1 of this chapter, the book writer and the woman meet again after they last saw each other 20 years before, and then he starts to recall the luncheon at that day. Part 2, all the time that she is consuming such rich foods and drink, she scolds mom for eating red meat as he has ordered mutton. जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट स्टोरी में. एंड नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी. ऑल स्टूडेंट्स आर asked to write this theme on a blank page and send it in the group. And what is the theme? Just see. In this story, mom is not disclosed the name of lady. मतलब इस पूरे स्टोरी में विलियम समरसेट मॉम ने उस लेडी का, उस औरत का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है. बिकॉज ही इज़ नॉट मेकिंग अ पॉइंट अबाउट अ पार्टिकुलर लेडी. क्योंकि उन्होंने एक लेडी की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया है, बल्कि ये हर उस लेडी का काम होता है जो कुछ अच्छे लोगों को मतलब मूर्ख बना करके उनके पैसों को खाती हैं, पीती हैं और फिर उसके बाद चली जाती हैं. तो ये स्टोरी का यही थीम है. इन दिस स्टोरी मॉम इज़ नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ लेडी बिकॉज ही इज़ नॉट मेकिंग अ पॉइंट अबाउट अ पर्टिकुलर लेडी बट इज़ रेफरिंग टू पीपल इन जनरल हु मैनिपुलेट अदर्स बट हु विल इवेंचुअली रिसीव देयर जस्ट रिवार्ड. And I hope that you all have understood the theme as well as the summary of this chapter. Luncheon, written by William Somerset Maugham, is very well. So I am wishing you all thank you very much, and I am also expecting from my all students that they will like and subscribe my channel. Thank you very much.